We will start. Yes, Prabhuji, we can start. Hare Krishna to all the assembled devotees. Uh, Today we are going to continue with our session on Gauranga series. We have discussed this the previous time also. ऐसी कोई बात मत कहिए जिसमें विवाद हो। खूब संबंध होता है रोटी बेटी के। नहीं नहीं, ये पुरानी कहावत है, मैंने कहा पुरानी कहावत है। और And before beginning today's session, we will make our prayers. Let us start by offering my humble and most respectful obeisances to my divine spiritual master, Sri Srimad Jayapataka Swami, who is disciple of Srila Prabhupada, who very mercifully gives out the Leela of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. He gives the teachings which are given by previous acharyas and devotees. He gives us Lord Nityananda Prabhu's kripa, his mercy, by establishing the spiritual dham in our hearts. And he does this without any discrimination, giving to even those in any town and any village. Then I offer my respectful obeisances to Srila Prabhupada, who is founder Acharya of ISKCON. On the order of his Guru, Bhakti Siddhanta Prabhupada, he went to the Western world, preached the message of Lord Chaitanya, and made even non-believers and atheists into great devotees of Sri Sri Radha Krishna. Then I offer my respectful obeisances to Sri Panchatattva, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna, with, with the heart and mood of Srimati Radharani, to Sri Nityananda Prabhu, who is Balaram, to Sri Advaita Acharya, who is Mahavishnu and Sadashiva, to Sri Gadadhar Pandit, who is incarnation of Srimati Radharani, to Srivas Pandit, who is incarnation of Sri Narada Muni, and all the Vaishnava devotees. Then I offer my respectful obeisances again and again to the divine couple Sri Sri Radha Krishna, along with all their associates and the holy dham. I offer my humble obeisances to all the devotees who have assembled today and who couldn't be assembled. Hare Krishna. So we are continuing from the discussion on Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. We have seen in the previous um, series Zoom sessions that how the condition of Kali Yuga was becoming bad and bad. This was seen by Narad Muni earlier. So he was unhappy. He complained to Krishna. Rukmini, who is wife of Krishna, also complained to Krishna. Then after that, Krishna promises that yes, I will come in Kali Yuga as my own devotee and preach the message of Krishna consciousness. Take this Hare Krishna Mahamantra everywhere. And at that time, Lord Chaitanya, Krishna, he informs Narada Muni that after my incarnation as Gauranga Mahaprabhu, 500 years after that, one of my commander-in-chief devotee will also appear. He is my Senapati Bhakta, commander-in-chief devotee, and he will take this Hare Krishna Mahamantra outside India to the foreign countries as well. So Lord Chaitanya took responsibility of India.
And he gave responsibility of preaching Hare Krishna all over the world to Srila Prabhupada. Then we saw in the next session that how the Kali Yuga is becoming very degraded. And even in Navadip, there are many Brahmanas and many great scholars and Pandits, but they are not devotees. They are thinking everything as materialists. They want to get name and fame. People should recognize them. People should glorify them. And for this reason, they started doing big programs, big festivals. So first they started by getting huge marriage, organizing huge marriages for their daughter or son. And once their daughter or son marriage is over, then they will organize marriage between Shiva and Parvati of the temple, in the temple, or some other deities in the temple, Lakshmi Narayan. And if that is also over, then they will get married dogs and cats. He dog and she dog, he cat and she cat. They will organize this as a proper marriage ceremony. That was a shocking thing. So devotees, they became very disturbed. What is happening like this? Why this is happening? Oh Krishna, you please come. Then finally, Advait Acharya, who is incarnation of Lord Shiva and Vishnu, he prayed to Krishna that nobody can handle this situation. You yourself have to come. Krishna has to come personally and help us in preaching Krishna consciousness, in making devotees of Hare Krishna. So he was worshipping a Shaligram Shila, a Vishnu stone, special Vishnu stone, with Ganga water and Tulsi leaves. Tulsi leaves and manjaris. Manjaris are seeds of Tulsi Prabhu. It's a flower which comes on the Tulsi plant. Yeah, and then Lord Chaitanya, he agreed, and then he came. Krishna agreed, and then he comes as Lord Chaitanya Mahaprabhu. We also discussed that how for 13 months he was inside the womb of his mother, and only on the day when it was lunar eclipse, which is coming in next week, Monday, not just next week, but after that, 25th March, Monday. It's a full moon day, Purnima day. But that Purnima was with eclipse. Okay, sorry, Prabhu, somebody has raised hand. Prabhuji, there is someone called Abhishek. He's saying, Prabhuji, don't speak English, speak Hindi, that will be better. Okay, ठीक है. He has his brother and his family and everyone Okay, who are great. also listening. Great. Thank you. Thank you, Abhishek Prabhu. सौर प्रभु, आप कंफर्टेबल है ना हिंदी में? प्रभु, जहाँ वर्ड पे कंफ्यूजन होगा मैं आपसे पूछ लूंगा. हाँ हाँ. और जहाँ पे मुझे भी हिंदी में कंफ्यूजन होगा, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा. ठीक है, तो हमने अभी तक ये जाना कि कैसे नारद मुनि, रुक्मिणी देवी और जितने भी भक्त हैं भगवान कृष्ण के, वे सब कृष्ण से निवेदन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कलयुग बहुत बहुत बुरी आदतें और बहुत बुरी चीजें हो रही हैं.
सब लोग अपने आप में बड़े बड़े पंडित बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में भक्ति कोई नहीं कर रहा। लोगों ने बड़े मंदिर तो बना दिए, लेकिन उनके हृदय में भक्ति नहीं है। वो केवल ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं कितना धार्मिक हूं, मेरे पास कितना पैसा है, देखो मैं मंदिर में कितना पैसा लगाता हूँ, कितना धर्म का कार्य करता हूँ। लेकिन वो भक्ति नहीं है हृदय में। इस वजह से सब भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की, और तब भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, आज से 500 साल पूर्व। फिर हमने पिछले जो जूम के सेशन हुए थे, उसमें यह भी चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन अवतरित हुए हैं, जो इस साल में 25 मार्च को आने वाली है, मंडे 25 मार्च को इंडिया में। लेकिन आज से 500 साल पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, तब उस दिन एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण के कारण सब लोग भगवान के नाम का उल्लास से, बहुत तीव्रता से जप कर रहे थे। तो उस भगवान के जप के बीच में, उस उल्लास के बीच में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतरण करना, अपना अवतार लेना सही समझा। क्योंकि बाकी समय में तो लोगों के मन में भक्ति ही नहीं होती थी। सही है, गंगा में जाके स्नान करना और उस हिसाब से भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र करना, सब लोग हरे कृष्ण करते हैं। जो हिंदू थे वो तो हरे कृष्ण करते ही हैं, और जो मुस्लिम थे वो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, उनको टीज करने के लिए बोलते थे, लुक एट देम, हे देखो उनको, ये हरे कृष्ण क्या कर रहे हैं, ये पागल हो गए हैं, हरि बोल करते हैं, पागल हो गए हैं। लेकिन जब हर जगह पे भगवान कृष्ण का नाम विद्यमान था, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब छोटे से बालक थे, तो उनका नाम पड़ा निमाई। सब लोग उनको निमाई बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे। बिकॉज ही वॉज बोर्न अंडर अ नीम ट्री, ही इज कॉल्ड निमाई। और क्योंकि वो गोल्डन रंग के थे, ही वॉज गोल्डन इन कंप्लेक्शन, उनका गौर वर्ण का अंग था, इस वजह से उनको गौरंगा बोलते थे। तो गौरंग जब छोटे से बच्चे थे, तो उस समय भगवान, वो अपना प्रचार तभी से चालू कर दिया। कैसे किया भगवान ने अपना प्रचार प्रारंभ? वो रोते थे, बच्चे सब रोते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत तीव्रता से और बहुत जोर जोर से रोते थे। जब सब लोग अड़ोस पड़ोस वाले आते और ताली बजा के कीर्तन करते, हरे कृष्णा कीर्तन करते, तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रोना बंद कर देते। एंड एज सुन एज दे विल स्टॉप डूइंग कीर्तन, अगेन ही विल स्टार्ट क्राइंग। जब वो रोना बंद कर देंगे, तब लोग, जब लोग अपना कीर्तन बंद कर देंगे, तब भगवान फिर से रोना चालू कर देंगे, फिर हंसने लग जाएंगे, फिर खुशी में झूमने लग जाएंगे। छोटे से बच्चे, 1-2 महीने के। तो अपने बाल्य रूप में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण प्रचार आंदोलन शुरू कर दिया था। लेकिन बात इतने में खत्म कहां होती है, इसके आगे भी तो चला। इसके आगे अभी फिर हमने चर्चा की कि किस प्रकार से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान गौरंगा को, निमाई को, उनका नाम कैसे मिला? तो उनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे, यानी कि उनके नाना, उनका नाम था नीलाम्बर चक्रवर्ती। तो नीलाम्बर चक्रवर्ती आते हैं और पूरा कैलकुलेशन लगाते हैं, हर एक चीज देखते हैं, और फिर बाद में कहते हैं, अरे हाँ, इसका सही नाम होना चाहिए विश्वाम्बर। विश्वाम्भर यानी कि वो व्यक्ति जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को मेंटेन करता हो, उसका पालन करता हो, उसका ध्यान रखता हो, उसकी रक्षा करता हो। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हम सब की रक्षा करते हैं, क्योंकि हम सबको उन्होंने ही हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, जिससे हम अपने बुरे पाप कर्मों से दूर हो सकें, हम भक्ति कर सकें,
हम नाम जप कर सकें और हम नरक में जाने से बच सकें। सबसे ज्यादा जरूरी जो प्रसन्नता, जो उल्लास, जो खुशी मिलती है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में, दैट हैप्पीनेस आप कुछ भी कर लो आपको नहीं मिलेगा। द हैप्पीनेस विच यू गेट while chanting हरे कृष्णा, while when you become devotee of Krishna, that happiness कहीं पे भी चले जाओ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। You will never get that happiness anywhere else। तो अभी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम विश्वंभर हुआ, he got the name विश्वंभर, तब जितने भी पुरुष थे, ऑल द मेल्स, उनने वोट किया विश्वंभर होना चाहिए। लेकिन जितनी भी स्त्री थी वो सब बोलती नहीं नहीं, हमें तो इसका पुराना नाम ही अच्छा लगता है, हम तो इसे गौरहरि कह के बुलाएंगे, नहीं तो निमाई कह के बुलाएंगे। गौरहरि क्यों? क्योंकि बिकॉज लॉर्ड गौरंगा इज गोल्डन इन कलर एंड ही विल बिकम वेरी हैप्पी व्हेन somebody says हरि हरि और हरे कृष्णा। सो इस वजह से उनका नाम हुआ गौरहरि। तो इस वजह से उनका नाम हुआ गौरहरि। म्यूट हो गया प्रभु। और लेकिन जितने भी पुरुष थे वो चाहते थे कि नहीं, इनका नाम तो विश्वंभर होना चाहिए। जितनी भी स्त्री थी, जितनी भी माताएं थी, वो सब चाहती थी कि नहीं, इसका नाम गौरहरि नहीं तो निमाई होना चाहिए, हमें तो वही नाम अच्छा लगता है। तो सब लोग कंफ्यूजन में पड़ गए, अरे क्या करें, अभी कौन सा नाम लेके आए। और नाना जी को भी टेंशन हो रही है, नीलाम्बर चक्रवर्ती को भी टेंशन है कि गौरहरि नाम दूं या विश्वंभर नाम दूं। तब नीलाम्बर चक्रवर्ती ने बोले ठीक है, सिंपल सोल्यूशन, मैं ऐसा करता हूं कि इस बच्चे का नाम आप सब लोग गौरहरि, गौरांगा और निमाई बोलिए, लेकिन जहां पे इसका ऑफिशियल नाम आएगा, चाहे वो उनके स्कूल में दाखिला के समय या फिर जब यज्ञ होगा उस समय जो नाम बोला जाएगा, उस समय पे इनका नाम विश्वंभर होगा। तब सबने बोला हाँ ठीक है, चलो ये चलेगा। कुछ समय पश्चात नीलाम्बर चक्रवर्ती ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए एक विशेष संस्कार आरंभ किया। वो विशेष संस्कार क्या होता है? जब हमें ये पता करना है कि बच्चे की रुचि, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, कि तो नीलाम्बर चक्रवर्ती ही ऑर्गेनाइज्ड अ स्पेशल संस्कार इन विच ही विल फाइंड आउट कि कौन कि इन विच थिंग दिस किड, दिस चाइल्ड इज हैविंग अ स्पेशल इंटरेस्ट। तो वो कैसे पता किया जाएगा? वो पता किया जाएगा कि एक जगह पे भागवतम और बाकी वेद ग्रंथ, भगवत गीता, भागवतम, वेद पुराण, ये सारे पुराण रखे जाएंगे। एक प्लेट के अंदर, बड़े से प्लेट के अंदर ये सारे पुराण और ग्रंथ रखे जाएंगे। दूसरी प्लेट के अंदर सोना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अलग अलग प्रकार के डायमंड ज्वेलरीज, ये सब रखी जाएंगी। ऑल दिस थिंग्स विल बी केप्ट इन अ सेपरेट प्लेट। इन वन मोर प्लेट, एक और प्लेट में अलग अलग अस्त्र शस्त्र ये सब रखे जाएंगे। वेपन्स, उस टाइम पे गन नहीं होते थे, हाँ, तो नॉर्मल जो वेपन्स होते थे वो रखे जाते थे, कोई मिसाइल नहीं रखते थे। फिर दूसरी जगह एक और प्लेट में ये रखा जाता कि जैसे कि हथौड़ा, कुल्हाड़ी, जो कि खेत में या घर में काम करने की जो वस्तुएं हैं, हथौड़ा हुआ, हैमर, नेल्स, विच, ये पता करने के लिए कि इन विच लाइन दिस बॉय विल गो। और बच्चे को, छोटे चैतन्य महाप्रभु को, छोटे निमाई को थोड़ा दूर रख दिया जाएगा। और इन प्लेटों के पीछे से माँ बाप और बाकी बंधु, जो परिवार के सदस्य हैं, वो इन प्लेट के पीछे खड़े रहेंगे और बुलाएंगे, निमाई इधर आ जाओ, गौरहरि इधर आ जाओ, हे गौरंगा इधर आओ, जल्दी आओ। फिर कोई बोलेगा विश्वंभर मेरे पास में आओ, मेरी गोद में आओ। अब जिस दिशा में छोटे निमाई जाएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ, आगे होके इनके भविष्य में इनकी रुचि किस चीज में है, और आगे बढ़कर अभी तो बचपन है, लेकिन बढ़ने के बाद में ये क्या करेंगे। तब छोटे निमाई इधर उधर देखने लगे और फिर चलते 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 वो सीधा पहुंच गए ग्रंथों के पास में। और उन सारे ग्रंथों के बीच में से वेद पुराण रखे हुए थे, उसके अंदर श्रुतियां स्मृतियां रखी हुई थी, उपनिषद रखे हुए थे, भगवत गीता भी थी, रामायण महाभारत भी थी।
लेकिन उन सब ग्रंथों के बीच में से उन्होंने भागवतम ग्रंथ को उठाया, और भागवत ग्रंथ को उठा के अपने हृदय से लगा के आलिंगन कर लिया, खूब जोर से अपनी छाती पे चिपका के पकड़ लिया। तब सबको पता चला कि चलो ये बहुत बड़ा पंडित बनेगा। लेकिन जितने भी भक्त थे उन सबको पता चल गया, अरे ये केवल पंडित नहीं, ये तो एक ऐसा भक्त बनेगा जो भागवत का प्रचार पूरे विश्व में करेगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको बता दिया था कि मैं यहां केवल प्रचार करने के लिए आया हूं, आप सबको कृष्ण भक्ति देने के लिए आया हूं। और ये कृष्ण भक्ति किस प्रकार से होगी? ये कृष्ण भक्ति श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उसके अनुरूप होगी। जो श्रीमद् भागवतम में जिस प्रकार की भक्ति बताई गई है उस प्रकार से मैं आप सबको प्रचार करूंगा। चलिए अब अगली कथा पे आते हैं। अभी तक सबको समझ में आ रहा है? आप सबको आ रहा है? यस, नो? ओके, ठीक है, वेरी गुड। अगर सबको समझ में आ रहा है तो बोलिए गौरंगा, गौरंगा, गौरंगा। नहीं नहीं, सब लोग नहीं कर रहे, सबको करना चाहिए ना। चलिए बहुत बढ़िया, एक और बार गौरंगा। बहुत अच्छे। चलिए, अभी एक और कथा आती है, और ये जो कथा है ये एक ग्रंथ है, चैतन्य मंगल। फ्रॉम दिस चैतन्य मंगल बुक एक एक बहुत अच्छी कथा आती है। जब भगवान बहुत छोटे से थे, रहे होंगे कुछ 7-8 महीने के, और वो माता के गोद में थे। सची माता जो श्री चैतन्य महाप्रभु की माता हैं, उनकी गोद में खेल रहे थे। थोड़ी देर खेलने के बाद में वो वरांडा में घूमने लग गए। जब वो वरांडा में घूमने लग गए, और उस समय पे उनके जो पिता हैं जगन्नाथ मिश्रा, वो अंदर वाले कमरे में सो रहे थे, आराम कर रहे थे। दिन का समय था, दोपहर हो रही थी। तो अपना प्रसाद लेने के बाद में वो अंदर कमरे में थोड़ा विश्राम कर रहे थे, और माता श्री निमाई, छोटे निमाई को अपने गोद में लेके खिला रही थी। इतने में ही वो क्या देखती हैं कि बहुत सारे लोग एकदम से उनके घर के अंदर आ गए। सो मेनी पीपल स्टार्टेड कमिंग इनसाइड। लेकिन ये केवल दरवाजे से नहीं आ रहे थे। जैसे आपके घर में कोई भी आएगा तो दरवाजे से आएगा, चलो कोई नटखट बच्चा हुआ तो वो खिड़की से भी कूद के आ जाएगा। लेकिन ये जो लोग उनके घर पे आ रहे थे, ये दरवाजे से और खिड़की से नहीं, ये हर जगह से आ रहे थे। दीवार के अंदर से आ रहे हैं, कोई छत के अंदर से आ रहा है, कोई धरती के अंदर से बाहर निकल रहा है। ये सब लोग वहां पे आ गए। अब सच्ची माता जब इन सबको देखती हैं तो उनके मन में फिर से थोड़ा सा भय तो होगा ही। मेरा छोटा निमाई है, उसको बचाना है, वो तो गोद से छूट के बाहर खेल रहा है। अब जैसे ही वो उठ के निमाई को पकड़ने का प्रयास करती हैं तो उनसे हिल के नहीं होता, वो वहीं पे अटक जाती है, अकड़ जाता है उनका शरीर। शी इज नॉट एबल टू मूव। She wants to catch the baby Nimai by seeing all these different people around her, but she's not able to move. Her whole body becomes very stiff. ये घबरा जाती हैं। आप लोगों ने इसका अनुभव किया होगा कभी कभी, जब आप सपना देखते हैं सोते वक्त, और वो सपना अगर डरावना सपना हो, इफ दैट्स अ हॉरिफाइंग ड्रीम, तो ऐसा होता है ना, यू वांट टू शाउट, यू वांट टू स्क्रीम, यू वांट टू कॉल समबडी, बट नथिंग इज मूविंग इन योर बॉडी। आपको पता है कि आप सपना देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा भी मूवमेंट नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसा ही समझो, लेकिन सची माता निद्रा में नहीं थी, वो सो नहीं रही थी, हकीकत में उनके साथ में ऐसा हो रहा था। शी वॉजंट स्लीपिंग एट ऑल। तब उन्हें देखा कि ये जितने लोग भी आए हैं ये तो बहुत सुंदर हैं। इनके सबके शरीर से एक कांति निकल रही है, एक एफल्जेंट निकल रहा है। और फिर इन सब लोगों ने मिलके, इनके बहुत सुंदर तो मुकुट हैं, इनने जो गले में माला पहनी हुई है, हार माला पहनी हुई है, वो माला भी बहुत सुंदर है, अच्छे अच्छे पुष्प हैं, वो फ्लावर्स में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। इनके पैर भी जमीन पे नहीं टिके हुए हैं, ये तो हवा में जैसे कि फ्लोट कर रहे हैं।
हवा में उड़ रहे हो, मान लो, तो उनको ऐसा एक बार तो लगा शायद से कोई देवी देवता है। हाँ, लग तो रहा है, देखो किस इसका तो मुंह जो है, इसका मुंह तो हाथी के जैसा है, गणेश जैसा है। अरे इनके इनके गले में देखे, इनके गले में जो है वो सर्प है, सांप है, यानी कि शिवजी जैसे दिख रहे हैं। अरे इनके देखो, इनके तो चार मुख हैं। तो ये तो यहाँ के नहीं, ये चार मुख वाले तो ब्रह्मा हो सकते हैं। अब सची माता ये सब देख रही हैं इतने में, और ये हकीकत में देवतागण ही थे। इन सब देवतागणों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाया, और वहां पे एक स्वर्ण सिंहासन था, गोल्डन थ्रोन। उस गोल्डन थ्रोन के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु को बिठा दिया, और बिठाने के बाद में उनकी पूजा करने लगे। पहले अगरबत्ती दिखाते हैं, उसके बाद में दीप की आरती करते हैं, घंटी भी बजाते हैं। कुछ लोग हैं जो वीणा बजा रहे हैं, कुछ लोग करताल बजा रहे हैं, कुछ मृदंग बजा रहे हैं, कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, कुछ लोग हाथ ऊपर करके नाच रहे हैं। उतनी ही देर में एक जल्दी से एक बहुत बड़ा स्वर्ण का घड़ा, मटका भर के आता है गंगा जल का, और ये गंगा जल लेके छोटे निमाई के ऊपर डाल देते हैं। अब सची माता के मन में टेंशन, अरे मेरा बेटा छोटा है, इसको सर्दी लग जाएगी, इसको बुखार हो जाएगा, मैंने सुबह ही तो इसको नहलाया था, इतने मुश्किल से इसको श्रृंगार करती हूँ, उसके बाद में तुमने फिर नहला दिया। फिर इतना ही देखती, मन में कुछ बोलने का प्रयास करती, लेकिन बोल के भी नहीं हो रहा। फिर कुछ समय के बाद में एक और जो स्वर्ण पात्र है, उसके अंदर स्वर्ण का घड़ा, सोने का घड़ा, उसके अंदर कोई तो दिव्य देवता उसके अंदर दूध लेके आके, और फिर निमाई निमाई छोटे निमाई का, विश्वंबर का अभिषेक करने लग गए। फिर एक चांदी का घड़ा था, सिल्वर पॉट, उसके अंदर से दही लेके आके उस भगवान का अभिषेक करने लग गए। कोई जूस लेके आ रहा है, कोई शहद लगा रहा है। फिर अच्छे से भगवान को फिर से गंगा के जल से अच्छे से अभिषेक किया। फिर उनके शरीर को एक बहुत ही मुलायम टॉवेल था, उस टॉवेल से भगवान के शरीर को अच्छे से पोंछा। पूरा पोंछने के बाद में उनका श्रृंगार करने लगे, उनको अच्छे अच्छे नए वस्त्र पहनाए। छोटे से बालक जो निमाई हैं हमारे गौरंगम महाप्रभु, छोटे से बच्चे को फिर से उन्होंने सारे वस्त्र पहनाए, अलग अलग आभूषण लगा रहे हैं, आंखों में काजल लगा रहे हैं। और जैसा सची माता भगवान चैतन्य महाप्रभु को काला टीका लगाती थी कि नजर नहीं लग जाए, उसी प्रकार से एक काला टीका भी लगा रहे हैं। उनके हाथों में वो स्वर्ण चूड़ियां पहना रहे हैं, उनके पैरों में वो पाजे पहना रहे हैं चांदी की। और बहुत ही सुंदर एक हार, जो कि अलग अलग फूलों से बना हुआ है, 5 प्रकार के फूल लगे थे उसमें, और अलग अलग प्रकार की पत्तियां, बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही है। ये सब पहना दिया चैतन्य महाप्रभु को, और फिर सची माता की गोद में लाके फिर से रख दिया। Again, after decorating Sri Chaitanya Mahaprabhu completely, they brought him back on the lap of Sachi Mata. And she wants to call, she wants to speak, she wants to tell her husband, जो जगन्नाथ मिश्रा अंदर सो रहे थे, उनको ये आवाज लगाना चाहती हैं, हे पतिदेव उठ के आइए, उठ के आइए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। और जब ये बिठा दिया चैतन्य महाप्रभु को, छोटे निमाई को सची माता की गोद में, तब सब लोग जितने भी थे, वो सब लोग अभी कीर्तन करने लग गए। सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, और हरे कृष्णा करते करते सबके हाथ ऊपर हैं, कोई ताली बजा रहा है, कोई हिल रहा है, डुल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है। सब लोग जोर जोर से गा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, और सब लोग क्या जप कर रहे हैं। और इस जप के बीच में हरे कृष्ण महामंत्र जो कीर्तन चल रहा है, इसके बीच में छोटे हमारे निमाई, उनको भी मजा आ रहा है, और मजा करते वक्त ही इज एंजॉइंग। और इंजॉइंग कैसे, वो भी अपने छोटे से हाथ ऊपर करके डांस कर रहे हैं। छोटे से निमाई फिर मैया के गोद से उठ जाते हैं, 7-8 साल के, 7-8 महीने के होंगे। इतने छोटा बच्चा तुरंत उठ के, मुश्किल होता है चलने के लिए, लेकिन ये केवल चल नहीं रहे,
ये डांस कर रहे हैं, कभी एक पैर पे कूदते हैं, कभी दूसरे पैर पे कूदते हैं। इनको खूब आनंद हो रहा है और दोनों हाथ ऊपर किए हुए हैं। और इस बीच में सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जब सब लोगों ने देखा, सब देवताओं ने, कि अरे सच्ची माता तो सही में अभी भी बहुत डरी हुई है और हमने उनको बहुत कष्ट दे दिया है। अभी भगवान हमारे ऊपर क्रोध भी हो जाएंगे कि हम उनकी मम्मी के साथ में ऐसा कर रहे हैं, उनकी माता के साथ में ऐसा कर रहे हैं। अभी हमने तो उनका अभिषेक कर दिया, उनका कीर्तन भी कर दिया, उनका स्वागत भी कर दिया। अब चैतन्य महाप्रभु सब देवताओं से कहते हैं कि आप सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, और सबसे कहिए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। तब वहां पे जितने भी देवतागण थे, उन सब ने ये प्रण लिया कि हाँ, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। आप सब यहाँ पे जो इस जूम सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सब से भी हम निवेदन करते हैं कि कृपया करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रतिदिन कीजिए, डेली कीजिए। और देखिए इसमें कितना आनंद, कितना उल्लास है, कितना उत्साह है। मन नाचने कूदने लग जाएगा। भक्ति भाव से कीजिए। तब ये आज्ञा पाके सारे देवताओं ने भगवान से क्षमा याचना प्रार्थना की, और उनसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिए, और फिर भगवान की आज्ञा लेके वहां से प्रस्थान किया। फिर से देवता तो देवता हैं, वो गेट से नहीं जाते। कोई खिड़की से जा रहा है, कोई गेट से जा रहा है, कोई दीवारों के अंदर से ऊपर निकल रहा है, कोई सीधा छत के ऊपर से निकल रहा है, कोई धरती के अंदर प्रवेश कर जा रहा है। अब जब ये सब सारे देवता चले गए और छोटे निमाई फिर से खेलने लग गए उनके खुद के घर में, तब सची माता के मुख से बोलना हुआ और उनसे थोड़ा हिलना हुआ। और तब वो अपने पतिदेव को बुलाती हैं, हे पतिदेव कृपा करके आइए। तब जगन्नाथ मिश्रा की निद्रा से वो भंग होके वो बाहर, कमरे के बाहर आके देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तब सची माता रो रही हैं, बहुत ज्यादा विलाप कर रही हैं, उनके आंसू बह रहे हैं, उनका जो पूरा शरीर है वो कंपन में है, कांप रहा है। कोई भी पति हो अपनी पत्नी को ऐसे देखेगा, अरे केवल ही पति पत्नी का नहीं, कोई भी रिश्तेदार जिससे भी आप प्रेम करते हो, वो ऐसे देखेंगे तो उनका मन कांपने लगेगा, उनको भय उत्पन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले जो रिश्ता जिस वजह से जगन्नाथ मिश्रा का और सची माता का जुड़ा हुआ था, ये केवल आम पति पत्नी नहीं थे, ये केवल एक आम माता या पिता नहीं थे। इनका रिश्ता भगवान की वजह से ज्यादा गाढ़ हुआ था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। द रिलेशनशिप बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर, फर्म, and will never be broken if the relationship is based on कृष्ण भक्ति। अगर हमारे जितने भी संबंध हैं, अगर वे संबंध कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं, तो वो जो संबंध हैं वो टूटेंगे नहीं, वो दीर्घ काल तक चलते रहेंगे। और वे सारे संबंध हमें सुख प्रदान करेंगे, वे सारे संबंध हमें कठिनाई में भी हमारी मदद करेंगे। वैसे संबंध हमें अपनी जिंदगी में लाने चाहिए। ओनली कृष्णा कॉन्शियस रिलेशनशिप्स, बाकी सब Sorry, तो थोथी। Prabhuji, this concept of Krishna conscious relationship, in हाँ signing it is not clear. Can you please explain what it is? हाँ, जैसे कि जगन्नाथ मिश्रा और सची माता, I ये, also want to put it, Prabhuji, यस, because it's a loaded concept ना, इसका कोई मतलब हाँ है। मैं अगर सिर्फ हाँ, कृष्णा कॉन्शियस रिलेशनशिप कर दूं, it doesn't make sense। समझ इसको नहीं you have to आता। fill it, उसको हाँ समझाना हाँ, पड़ेगा। ओके। एक मिनट। तो जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की माता है और श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता हैं जगन्नाथ मिश्रा और सची माता, इन दोनों का जो
आपस में संबंध है, वो पति पत्नी का संबंध तो है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, वो रिलायबल कैसे है? क्योंकि इनके सेंटर में भक्ति है, इनके सेंटर में भगवान कृष्ण है, इनके सेंटर में श्री चैतन्य महाप्रभु हैं उनके पुत्र रूप में। इसके लिए ये एक दूसरे से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसके लिए ये एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हमारे जीवन में भी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे जीवन में भी कोई हमारे पिता हैं, कोई हमारी माता हैं, कोई हमारे दोस्त हैं, कोई हमारे बहन है, कोई हमारा भाई है। लेकिन ये जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी संबंध हैं हमारे जीवन में, अगर ये भगवान कृष्ण को सेंटर में रखते हुए उनकी भक्ति के ऊपर निर्धारित होते हैं, तो ये सुख प्रदायी हैं। नहीं तो ये आज नहीं तो कल दुख ही देने वाले हैं। चलिए इसका एक और उदाहरण दे देते हैं। देवकी और कंस, ये दोनों भाई बहन हैं। देवकी भगवान कृष्ण की माता है और कंस देवकी के भाई हैं, यानी कि कृष्ण के मामा। इन दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन था। तभी तो एक राजा होते हुए भी कंस देवकी का जो रथ है उसको खींच के लेके जा रहा है विदाई शादी के बाद में। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, वो सारे जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं, जितने भी रिलेशन, सब भूल जाता है। अभी उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, ये देवकी है और इसका जो पुत्र होगा, जो 8वें नंबर का होगा, वो मेरा वध करेगा। तो वो पैदा हो उससे पहले ही मैं उसको नष्ट कर दूं। यानी कि अगर मैं देवकी को ही मार दूंगा तो पुत्र ही पैदा नहीं होगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ऐसा करते हैं, वध कर देते हैं देवकी का। अब सोचिए, इतना जो प्रेम था देवकी में और कंस में कि कंस उसका ड्राइवर बनने के लिए तैयार है, रथ खींच के लेके जा रहा है। वो तुरंत कैसे चेंज हो गया? क्योंकि कंस के मन में भक्ति नहीं है। सॉरी प्रभु जी, ये रथ वाला थोड़ा मिस हो गया मेरे को, थोड़ा आप तो रिपीट कर दीजिए। हाँ, हाँ, देवकी की शादी हुई और शादी के बाद में कंस बोलता है कि मैं खुद देवकी का ड्राइवर बनूंगा, मैं उसका रथ खींच के लेके जाऊंगा। इतना प्रेम करता था वो देवकी को, बहुत ज्यादा। उसने बहुत सारा धन दिया था देवकी के शादी के समय। बहुत दहेज दिया, हाथी, घोड़े, दास दासियां, हीरे जवाहरात, स्वर्ण मुद्राएं, जमीन, बहुत बहुत कुछ उसने दहेज में देवकी को दिया शादी के पश्चात और शादी के समय। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी से पता चलता है कि देवकी का पुत्र उसका वध करेगा, ये पूरा का पूरा संबंध, जो रिलेशन है, वो खत्म, वो नष्ट, वो बर्बाद हो जाता है। और वो अपनी खुद की बहन को मारने के लिए उतारू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस संबंध में भगवान कृष्ण की सेवा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और कोई भी संबंध हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे माँ बाप का हो, या कोई और भी संबंध ले लीजिए, अगर उस संबंध में भगवान कृष्ण की भक्ति और कृष्ण की सेवा है, तो वो संबंध चलेंगे। वे संबंध कभी टूटेंगे, बिखरेंगे नहीं। जैसे कि देवकी और वसुदेव, ये दोनों कृष्ण के माता पिता हैं। और कंस ने इन दोनों को जेल में डाल दिया। अगर ये चाहते, अगर वसुदेव को भी गुस्सा आ सकता है ना, वो भी देवकी से कह सकता है कि मेरी क्या गलती है, तेरा पुत्र होने वाला है 8वां, वो कंस का वध करेगा, मैं क्यों जेल में पड़ा हूं तेरे लिए? मैं बाहर जा सकता हूं, मैं बाहर भाग सकता हूं, मैं छुट्टी पा सकता हूं, मैं तुझसे नाता, अपना रिलेशन है वो तोड़ सकता हूं। लेकिन वसुदेव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो देवकी के समय, हर समय
उसके साथ में उसका हाथ पकड़ के साथ में खड़ा रहा। और देवकी क्यों? क्योंकि उसके सेंटर में क्या है, उस रिलेशन, उस संबंध के सेंटर में क्या है? भगवान कृष्ण, उनकी भक्ति और कृष्ण की सेवा। क्योंकि कृष्ण की सेवा सेंटर में है, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आई। अगर ये कृष्ण की सेवा छूट जाती तो फिर से जो वसुदेव, जो कंस और देवकी के बीच में झगड़ा हुआ, वही झगड़ा देवकी और वसुदेव के बीच में भी होगा। सौरभ प्रभु, आपकी वीडियो, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ प्रभु जी, मैं तो सुनता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब एक और उदाहरण देते हैं। अब जैसे कि ये जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ ना, इसमें कौरव और पांडव आपस में भाई भाई हैं। और पांडव, जिसमें खासकर अर्जुन, वो कौरवों से युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उन्हें युद्ध करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहते। जबकि जो ये 5 पांडव हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों? कि ये भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं। दुर्योधन का एक भाई था। उस भाई का नाम था युयुत्सु। वो जो भाई था युयुत्सु, उसने कहा कि युधिष्ठिर सही है, पांडव जो हैं वो सही हैं, और हमें भी भक्ति करनी चाहिए। इस वजह से ये कौरवों की साइड छोड़ के पांडवों की साइड में चला गया। लेकिन दुर्योधन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इतना क्रोध में आया कि जैसे ही उसको युयुत्सु का पता चलता, वो तुरंत उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता, अपने खुद के भाई को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो भगवान कृष्ण को, उनकी भक्ति को और सेवा को नहीं समझ पाता। लेकिन वही पांडवगण उस युयुत्सु, उसकी रक्षा करते। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान कृष्ण की सेवा प्रधान है। क्या है सेंटर में? क्यों उनका संबंध टिका हुआ है? संबंध किसके ऊपर टिका हुआ है? भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा के ऊपर यह संबंध टिका हुआ है। तो अभी आशा है कि आप सबको थोड़ा ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कभी किसी और दिन जब और चर्चा करेंगे, तब इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब हम, जो हमारी स्टोरी थी चैतन्य महाप्रभु की छोटे गौरंगा की, उसको कंटिन्यू करते हैं। अब छोटे गौरंगा क्या कर रहे हैं? वो तो खेल रहे हैं घर पे। और जगन्नाथ मिश्रा जो पिता हैं, वो माता सच्ची के पास में आते हैं और देखते हैं कि वो रो रही है। अब पूर्ण प्रयास करते हैं कि शांत हो जाए, शांत हो जाए, लेकिन नहीं, इनका तो कंपन भी चल रहा है और ये रो भी रही हैं। तब वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुश्किल से कहती हैं, बहुत सारे लोग आए थे, अच्छे से बता भी नहीं पा रही। हाँ, अटक अटक के बोल रही हैं, बोलती बहुत सारे लोग आ गए। हाँ, किसी का 10 सर थे, किसी के 5, किसी के 4, कोई मुकुट पहना था, किसी का गार्लैंड था। अरे वो यहाँ से आया, उसने दूध डाला, किसी ने दही डाला, अभिषेक किया, अच्छे से साफ किया, कपड़े पहनाए, मेरे गोद में रखा, कीर्तन किया, अभी पता नहीं कहाँ चले गए। अब जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं ठीक है देवी, आप थोड़ा पानी पीजिए। और पानी पिलाने के बाद में कहते हैं कि अब मेरे को अच्छे से बताएं क्या हुआ। तब सच्ची माता का जब धैर्य बंधा, तब वो फिर से पूर्ण कथा बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तब जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पुत्र है, वो कोई आम नागरिक, आम बालक नहीं है, वो जरूर कोई विशेष बालक है। तब सच्ची माता कहती नहीं, ये विशेष बालक है, कोई सिद्ध महात्मा है, ये सब मुझसे मत कहो। वो तो मेरा छोटू सा निमाई है बस। वो मेरा छोटा गौरहरि है। मुझे तो बस इतना ही पता है। अब जैसे ही ये बात कही, उतनी ही देर में वो देखते हैं कि निमाई पंडित, छोटा निमाई जो है, वो तुरंत सच्ची माता की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं।
और हंस के फिर तुरंत मुड़ के फिर से अपने घुटनों के बल चलने लग गए। और जैसे ही चलने लगे तब आवाज आती है, छिन 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 छिन। और जब वो देखते हैं कि क्या आवाज आ रही है, अरे निमाई ने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ, इसके तो पैरों में कोई पायल नहीं है, कोई घुंघरू नहीं है जहां से आवाज आएगी। तब जगन्नाथ मिश्रा फिर कहते हैं कि हाँ, ये दिव्यता है हमारे बालक की, और ये जरूर स्वयं भगवान ही है, ये कृष्ण के ही अवतार रूप में आए हैं। अब जैसे ही जगन्नाथ मिश्रा ने ये बात कही, तब फिर से चैतन्य महाप्रभु, छोटे निमाई, तुरंत फिर से अपने माता पिता की तरफ देखते हैं, हंसने लगते हैं और कहते हैं, बाबा, मैया। और फिर जोर से कोशिश करते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलने की कोशिश करते हैं, और उनके पास में भाग के और फिर से उनकी गोद में घुस जाते हैं। अब जितना भी ये भाव था कि हमारा पुत्र जो है वो भगवान है, ये कोई सिद्ध आत्मा है, छोटा बालक नहीं है, ये सारा भाव खत्म हो जाता है। और फिर से जो माता पिता का जो वात्सल्य भाव रहेगा, वो फिर से लव जो है वो फिर से आ जाता है। जो पैटर्नल मैटरनल लव है, जो पेरेंटल लव है, फिर से उनके हृदय में आ जाता है, और वो ये सब भूल जाते हैं कि इसके अभी अभी किसी ने अभिषेक किया, देवता गण आए थे अभिषेक करने के लिए, वो भूल जाते हैं। इसके पैरों में पायल नहीं है फिर भी छन छन की आवाज आती है, वो भी भूल जाते हैं। और बस ये सोचते हैं कि हमें अपने निमाई की बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से हमारे निमाई का ध्यान रखना है। एक दिन की बात है, जब सची माता इस प्रकार से निमाई की ध्यान रख रही थी, तो बाहर बैठे थे वो अपने वरांडा में। और उस समय पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतना कंक्रीट, इतना पोल्यूशन, इतनी सारे ट्रक गाड़ियां, साउंड पोल्यूशन, ये सब नहीं था। कोई एयर पोल्यूशन भी नहीं था। तो इसके लिए आकाश पूरा साफ रहता, और चांद भी दिखाई देता, तारे भी दिखाई देते, और हवा भी बहुत मधुर मधुर बहती। और इस वातावरण में जब सची माता के गोद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु छोटे बाल रूप में बैठे हैं, तब वो ऊपर देखते हैं और बोलते हैं, मैया, ये क्या है? मैया बोलती है, क्या लाला, क्या कह रहे हो? बोलते, मैया, ये देखो, ये क्या है ये देखो। मैया कहती, अच्छा, ये जो गोल गोल सफेद सफेद है, अरे लाला, ये तो चांद है। मैया, चांद क्या होता है? बोला, लाला, चांद जो है ये एक नक्षत्र है। बोले, ये क्या करता है? बोलते, बेटा, जब जैसे कि दिन के समय में सूर्य हमें प्रकाश देता है, उसी प्रकार से रात्रि के समय चांद हमें एक बहुत ही शीतल प्रकाश देता है। चांद को हम देख भी सकते हैं, इसके साथ में खेल भी सकते हैं। जब ये सब कहने लगे, तब थोड़ी देर के बाद में गौर हरि, हमारे निमाई, छोटे निमाई, वो रोने लग गए, और बहुत बहुत जोर से रोने लग रहे हैं। और अब तो सची माता को तो पता है, अगर ये रोएगा तो मुझे क्या करना है, हरे कृष्णा करना है। लेकिन ये हरे कृष्णा कर रही हैं, लेकिन फिर भी अभी तो निमाई नहीं चुप हो रहा। पूरा प्रयास किया लेकिन फिर भी चुप नहीं हो रहा। तब बोलते, ठीक है लाला, तुम रो मत, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। क्या चाहिए बताओ? कुछ खाना है, संदेश खाना है, मिठाई खानी है, घूमने चलना है, बाहर घूमने चलना है, कुछ खेलना है? बोलते, नहीं, नहीं, नहीं। तो बोले, ठीक है लाला, रोना बंद करो, तुम्हें क्या चाहिए वो मैं दूंगी, अब बताओ। बोलते, पक्का दोगे? पक्का प्रॉमिस? सच्ची माता कहती है, अरे मैं तेरी माता हूं, इसमें पक्का प्रॉमिस क्या हुआ? पक्का दे दूंगी। अब निमाई अपना पूरा दिमाग लगा के बोलते हैं, ठीक है, मुझे वो चांद चाहिए, मैं उस चांद के साथ में खेलूंगा। आपने भी कभी अगर पूर्ण पूर्णिमा का चांद देखा हो, इतना बड़ा, इतना विशाल दिखाई देता है। और बस ऐसे लगता है, जब हम छोटे थे तो हमें भी लगता था कि अभी इस हाथ से एक हाथ ऊपर बढ़ाया और चांद को पकड़ लेंगे, जस्ट बाय एक्सटेंडिंग अवर हैंड वी विल कैच द मून। ये सब हम सबको लगा है बचपन में।
वही चीज निमाई को भी लग रही है। अब वो चाहते हैं कि मैं ये चांद को पकड़ूं, लेकिन वो तो पकड़ में नहीं आता। पूरा कोशिश करते हैं, पकड़ में नहीं आता। अब वो अपनी माता से कहते मुझे वो चांद ला के, तो मुझे तो चांद चाहिए। अब सच्ची माता बता रही हैं, अरे नहीं लाला, चांद जो है वो आकाश में रहता है, हम धरती पे रहते हैं, और ये बहुत दूर है। बोला कितना दूर है? मुझे तो यहीं दिखाई देता है। इससे ज्यादा दूर तो हमारा किचन है। आप किचन में जाके दूध बना सकते हो, खाना बना सकते हो, मेरे लिए चांद नहीं दे सकते। मैं छोटा हूं, मेरा हाथ नहीं जाता। आप बड़े हो, आपकी हाइट बड़ी है, आप मेरे को चांद नहीं देते। अब सच्ची माता उनको समझाने की कोशिश कर रही है, और निमाई बोल रही नहीं मुझे चांद चाहिए। हठीले हैं, बहुत हट किया है। अब सच्ची माता परेशान हो जाती और कहती है, हे भगवान, आप ही कुछ मदद करो कि मेरा लाला ये मांगना बंद करे। अब सच्ची माता जो स्वयं भगवान की माता है, सारे देवतागण उनकी सेवा में लगने के लिए प्रयत्न रत रहते हैं। तो उस समय क्या हुआ? एक बहुत बड़ा भारी सा क्लाउड, क्लाउड को क्या बोलते हैं? बादल। मेघ, बादल। हाँ, मेघ बादल, वो आके उस चांद के सामने आ जाता है और कवर कर देता है। अब सची माता कहती है, देखो लाला, तुम इससे मांग रहे थे ना बार बार, ये तो डर गया, ये डर के अभी घर चला गया। और छोड़ो, ये तो चांद है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरा लाला जो निमाई है, गौरहरी है, वो इससे ज्यादा अच्छा है। देखो, चांद तो केवल सफेद है, लेकिन तुम तो गोल्डन हो, तुम तो स्वर्ण वर्ण के हो। और देखा है, चांद में तो काले 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 छोटे छोटे धब्बे हैं, लेकिन मेरा गौरहरी, मेरा प्यारा सा लाला, इसके ऊपर तो कोई भी चिन्ह नहीं है। ये तो कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। ऐसा बोल के फिर से सच्ची माता ने छोटे निमाई को अपने आलिंगन गोद में लेके और उनका चुम्बन करने लगी, और अच्छे से प्यार करने लगी। और बोलती, देखो ये गोलू गोलू गाल हैं, इतनी अच्छे अच्छे होठ हैं। चांद के तो होठ भी नहीं है, चांद की तो आंखें भी नहीं है, उसके पास तो गाल भी नहीं है। फिर निमाई, छोटे निमाई अपने हाथों से अपना टच कर करके देखते हैं, हाँ देखो, ये मेरा गाल है, ये मेरा नाक है, होठ भी है। माता सही कहती है, सच कहती है, सही कहती है, हाँ उसके अंदर दाग है। बोलते नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो सच्ची माता चाहिए। मैं अपनी माता के साथ में रहूंगा, मैं अपनी मैया के साथ में रहूंगा। इतना कह के वो फिर से अपनी माता का आलिंगन कर लेते हैं। अभी एक और आखिरी कहानी, एक और आखिरी जो लीला है भगवान की, और उसके बाद में प्रश्न ले लेंगे। वो फिर से अनम्यूट कर दिया लगता है मैंने। चल कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, भगवान की जैसी इच्छा। प्रभु जी, मेरे को काम करने में मुश्किल अरे हो रही हाँ, ये भी सही है। चलो, मेरे ख्याल से हो गया ना अभी म्यूट। धन्यवाद। तो एक बार की बात है, छोटे निमाई जो कि अभी धीरे धीरे से बस चलने लगे हैं, और वो कैसे कैसे खड़े होते हैं, एक दीवार के पास में जाते हैं, उस दीवार के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, और फिर धीरे 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 करके जोर लगा के सपोर्ट लेके फिर खड़े होते हैं। और फिर मैया को दिखाते हैं, देखो मैं खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया। और जैसे ही वो खड़े हो जाते हैं और मैया के पास में ऐसे अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रख के थोड़ा चलने का प्रयास करते हैं, डुम, गिर जाते हैं। और सच्ची माता देख के ये बहुत हंसती है। अब निमाई को तो चोट लगी है, निमाई को तो दर्द हो रहा है। अब सच्ची माता देखती है कि तो रोने वाला है, तो इसको अपने गोद में उठा लेती हैं। लेकिन निमाई को तो गुस्सा आ रहा है, देखो मेरे को चोट लगी है और मेरी माता हंस रही है। बचपन में हम भी कभी कभार अपने गुस्से में आके अपनी माता को थोड़ा मार देते थे।
तो छोटे निमाई वही अपना बाल्य बाल्य लीला कर रहे हैं, जोर से नहीं लेकिन हल्के से मारते हैं। और सची माता को ये चीज बुरी लगती है। अरे ये मेरा बच्चा तो फिर गलत चीज सीखेगा। वो तो सीख रहा है कि अपनी माता को मार सकते हैं, अपने पिता को मार सकते हैं, तो गलत चीज होगी। अभी जिस प्रकार से यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को बांधा था अपने प्रेम से, उसी प्रकार से ये सोचने की मुझे भी इसको कोई ना कोई तो पनिशमेंट देनी पड़ेगी, नहीं तो ये तो बिगड़ता जाएगा। आज मुझे मार रहा है, कल अपने बाबा को मारेगा, फिर बाकी दूसरे लोगों को भी मारेगा। तो वो बचपन से ही ये शिक्षा प्रारंभ करती हैं। और बचपन से क्या शिक्षा देती हैं? जैसे ही निमाई ने मारा तो बेहोश होने का नाटक करती हैं, हकीकत में बेहोश नहीं होती। आफ्टर निमाई पंचेस सची माता, शी एक्ट्स टू बी फेंटिंग। इन रियलिटी शी इज नॉट फेंटिंग, शी इज एक्टिंग। एंड एज सुन एज शी एक्ट्स ऑफ फेंटिंग, निमाई बिकम्स वेरी अफ्रेड। वो बहुत डर जाता है छोटा निमाई। अब वो हिलाते हैं, मैया उठो, मैया मैया उठो मैया। और वो कोशिश करते हैं कि जैसे कि मैं रोता हूं तो मैया हरे कृष्णा बोलती है, मैं शांत हो जाता हूं, तो ये भी हरे कृष्णा बोल रहे हैं, लेकिन मैया शांत नहीं हो रही। मैया तो उठ भी नहीं रही, कोई जवाब नहीं दे रही, कुछ नहीं बोल रही। अब छोटे से निमाई डरे हुए हैं, अपने घुटनों के बल बाहर जाते हैं और किसी को बुलाने के प्रयास करते हैं, अड़ोस पड़ोसी को बुला के लेके आते हैं। और वो सब जब घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि अरे, सची माता तो बेहोश हो गई हैं। अब सची माता इशारों में, निमाई को नहीं पता, निमाई तो छोटा बच्चा है, वो तो हिलाने की कोशिश कर रहा है। अब सची माता इशारों में अपने दोस्तों को बताती हैं, पड़ोसियों को बताती हैं कि मैं जानबूझ के एक्टिंग कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा सिखाना है। बोले ठीक है। तो अब जितनी भी वो पड़ोसन है, अब तो उनको मजा आ गया। बोले अच्छा, प्लानिंग अच्छी है। तो सची माता अभी क्या क्या बोलती है, हम भी आपके प्लान के साथ में हैं, टेंशन मत लो। अब वो निमाई को बोलते, देखो निमाई, तुमने मम्मी को मारा, इसके लिए तुमको ये पनिशमेंट है। जो भी अपनी माता को मारता है, अपने से बड़े को किसी को भी मारेगा, वो तो उसका संग छोड़ देगा। इस वजह से अब तुम्हारा संग छूट गया। अब तुम्हारी माता कभी वापस नहीं आएंगी क्योंकि तुमने उनको मारा। अब छोटे निमाई बहुत बोलते, नहीं नहीं, मुझे अपनी माता वापस चाहिए, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे तो अपनी माता वापस चाहिए। प्लीज प्लीज आप कुछ तो कीजिए, आप लोग तो बड़े लोग हो, डॉक्टर को लेके आओ, ये करो वो करो, कोशिश कर रहा है। बोलते इसका तो केवल एक ही इलाज है, पहले तो तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद में कभी भी अपने माता पिता पे गुस्सा नहीं होगे और उनको मारोगे नहीं। बोले हाँ प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, इमीडिएट प्रॉमिस। बोले कि अपने से किसी भी बड़े को भी नहीं मारोगे। बोले हाँ वो भी पक्का प्रॉमिस, नहीं मारूंगा, पक्का नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे मेरी मम्मी को मिला दो, अभी अभी उन्हें उठा दो। तो बोलते बेटा, ये तो एक सिंपल है, तुम ऐसा करो, बाहर जाके 2 नारियल लेके आओ, और जैसे ही तुम 2 नारियल लेके आओगे, कोकोनट लेके आओगे, तो तुम्हारी माता की मूर्छा खुल जाएगी। बोले ठीक है ठीक है। तो निमाई जस्ट गेट के बाहर जाते हैं और तुरंत अंदर आ जाते हैं। अब वो तो स्वयं भगवान है, अपनी लीला कर रहे हैं घर के अंदर, लेकिन घर के बाहर दूसरी लीला कर रहे हैं। कोई मार्केट नहीं गए, घर के बाहर एक स्टेप रखा, तुरंत 2 कोकोनट लिए हाथ में और अंदर आ गए। अब निमाई छोटा है, पूरा तो अच्छे से चल के भी नहीं हो रहा, थोड़ा घुटने पे चल रहा है, थोड़ा खड़ा होकर चल रहा है, गिर रहा है, उड़ रहा है, जो भी है, जल्दी जल्दी करके पहुंच गए। और बोले ये लो दोनों दोनों कोकोनट। अब जैसे ही ये कोकोनट सची माता के पास में रखे जाते हैं, सची माता अपनी मूर्छा को त्याग देती हैं और फिर वापिस से निमाई को अपनी गोद में ले लेती हैं। और निमाई थोड़ा रोता है, थोड़ा हंसता है, खुश भी है और थोड़ा टेंशन में भी है, और प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ सॉरी सॉरी, आज के बाद में मैं ऐसा कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं मारूंगा, मेरी गलती हो गई, मैं आपसे केवल प्यार करूंगा, मेरी मैया हमें केवल प्यार करूंगा। ठीक है। तो आज की जो भगवान गौरंग महाप्रभु की लीला है, उनको यहीं पे विश्राम देते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो केवल एक ही प्रश्न, हमारे पास ज्यादा समय नहीं।
उमा माता जी ने हाथ उठाया सब। हरे कृष्णा। हम्म। फादर। हाँ, तो देवकी और वासुदेवी थे ये नीलांबर और सची माता जी प्रभु। सही प्रश्न है माता जी। वो नीलांबर चक्रवर्ती नहीं है प्रभु, लेकिन नीलांबर चक्रवर्ती तो नाना है, और पिता नहीं, है सही, सॉरी सॉरी, उनका क्वेश्चन ये जगन्नाथ था, ये मिश्रा। इंटर, हाँ, जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता। एक्चुअली प्रभु जी इनकी साइंस नहीं है ना अभी। हाँ हाँ, हम भी JM SS कुछ कुछ करते तो अच्छा, कंफ्यूज है। ठीक ठीक। हाँ, तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता जो है, ये वसुदेव और देवकी, नंद और यशोदा, इन दोनों का मिश्रण है। इन दोनों का भाव, इन दोनों का जो प्रेम का मिश्रण है, उसी रूप में आए हैं। चारों। हाँ, दोनों पिता मिल गए और दोनों माताएं मिल गई। 9 बार डेथ होने, 9 लड़कियां नहीं, हाँ, हाँ, नौ 9 कन्या। गर्ल्स का डेथ के बाद प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के होने के पहले 9 बार शायद या हाँ मिसकैरेज हुआ था, फिर चैतन्य महाप्रभु हाँ 9th बच्चे थे। हाँ। तो 8 उनका क्या रीजन हुआ कि उससे पहले क्या वही सेम था, क्योंकि कंस भी उनको 8 कुछ को मार दिए थे, तो नहीं कैसे नहीं, प्रभु? उनका और इनका कोई संबंध, ऐसा संबंध नहीं है। ये जो 9 कन्याएं हैं, इनका और जो कंस ने मार दिए थे, वो केवल 6 हैं। क्योंकि आखिरी के तो, एक तो बलराम और एक कृष्ण है। कंस ने केवल 6 पुत्र मारे थे। 7वें तो बलराम जी हैं और 8वें भगवान कृष्ण हैं। लेकिन इसका उन 6 पुत्रों का और ये 9 कन्याओं का कोई ऐसा संबंध नहीं है। क्या रीजन है प्रभु जी, इसका क्यों रीजन, वो लोग मरे थे वो? हकीकत में तो इसका रीजन मुझे भी नहीं पता। मेरे को भी इसका शोध करना पड़ेगा कि इन 9 कन्याओं के पीछे क्या रीजन है। कभी मौका मिला तो जरूर मैं अपने गुरु महाराज से ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे। ठीक है। हरे आप कृष्ण। सबका बहुत धन्यवाद आज के वार्ता में जुड़ने के लिए। निवेदन है कि आप अगली बार जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर जो वर्णन होगा, उस समय फिर जुड़ेंगे। जिनके प्रश्न आज नहीं लिए गए, खासकर नम्रता प्रजापति और ऋषिकेश प्रभु, आप लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के थ्रू समीर प्रभु को भेज सकते हैं या मधुरा माता जी को भेज सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, नहीं तो अगली बार प्रयास करेंगे। आइए, सब लोग साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और आज की जो कथा है इसको विश्राम करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। गौरंग।